रात के बजे है 2। तो सोचा कुछ आज तूफान ही करते। मोबाइल खोला, सॉफ्टवेयर अपडेट आया, बोला मार दो सॉफ्टवेयर अपडेट। Welcome back to my channel. So today I'll be installing the newly rolled out iOS 14 on my iPhone 7. Actually I got this update last week, but then ऐसा खबरियों से पता चला कि this update has some major issues which needs to be fixed. So I was just waiting for the next update to be rolled out. And right now I was checking, and yes, it's available. It's iOS 14.0.1 if you can see here. Actually, I'm a bit dicey about the performance of iPhone 7 on iOS 14 because this phone has already undergone 3 major updates since its launch, and iOS 14 will be the 4th one. Earlier, I didn't face any issues or gates with regards to the performance on iPhone 7, but fingers crossed. देखते क्या लिखा है तकदीर में. So this is what the home screen looks like in iOS 14. So what I'll do is I'll just quickly run through what's new in iOS 14, and then I'll get back to the bug fixes of iOS 14.0.1. So starting from the widgets, so what they have done is they have included the widgets in iOS 14. So what you have to do is you have to just swipe left from your home screen. You will enter this section. So here you can see all your widgets. Even you can edit them as per your wish. So here there is an option to add widgets. So as you click on this option, you will see the listed widgets here. So may it be calendar, maps, clock, notes, and all the list. So basically these are just the iOS widgets. So अभी तक थर्ड पार्टी widgets आए नहीं हैं. So until that these are only the widgets available. So ये तो है widgets का हो गया. So the next thing is app library. So this one's new. So क्या किया एप्पल ने अभी इसमें कि जितने भी आपके ऐप्स हैं मोबाइल पे हैं वो उन्होंने सिर्फ कंसोलिडेट किए हर एक फोल्डर में. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऐप, सो एप्पल हैज जस्ट ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड केप्ट इट इन द रिस्पेक्टिव फोल्डर्स. सो इफ यू सी योर प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस, सो दीज हैव दिस मच एप्स. सो द सॉफ्टवेयर जस्ट रिकॉग्नाइजेस विच ऐप टू पुट वेयर एंड इट ऑर्गेनाइजेस अकॉर्डिंगली. मुझे तो इतना फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि मैं पहले से ही ऐप्स मेरे फोल्डर्स में रख देता हूँ. So that's what I've been following since I'm using iPhone 4. So it didn't make any difference to me, but this one is the new. So this one's new, app library. And whenever you're pulling down from here, you will get a list of apps in alphabetical order. So आप यहाँ से भी select कर सकते हो. So this one's the second change. The third thing is in settings, just scroll down to privacy. तो स्क्रॉल डाउन टू प्राइवेसी, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रैकिंग करके. सो ट्रैकिंग बेसिकली क्या है कि इट अलाउज द एप्स टू आस्क परमिशन टू ट्रैक यू अक्रॉस द एप्स. सो बेसिकली इन शॉर्ट, जब भी आप किसी ऐप को परमिशन दे रहे हो टू ट्रैक योर डेटा, सो दिस ऑप्शन इज़ फॉर दैट. द अदर थिंग इज़ फोटोज़. इसमें you will see a list of applications and here it's mentioned all photos. So suppose for example I'm clicking on Instagram. So as I'm clicking on Instagram, I'll see another 3 options: selected photos, all photos and none. So basically पहले कैसा होता था, अगर किसी ऐप में आपको फ़ोटोज़ चाहिए, सपोज से इंस्टाग्राम, अभी इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले रहे हो तो इंस्टाग्राम का बोलता हूँ मैं. सो अगर आपको कुछ इमेज अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप इंस्टॉल करोगे इंस्टाग्राम, यू विल स्टार्ट एडिंग फ़ोटोज़. तब आपको इंस्टाग्राम एक सवाल पूछेगा कि वेदर यू आर अलाउइंग इंस्टाग्राम टू एक्सेस योर फोटोज़, एंड यू क्लिक अलाउ. एट दैट टाइम व्हाट डज इंस्टाग्राम डू इज इट एक्सेस एंटायर फोटोज़ इन योर फोटो लाइब्रेरी. सो अभी iOS 14 में ये सबसे बड़ा चेंज किया है उन्होंने. दे हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस: सिलेक्टेड फोटोज़, ऑल फोटोज़ एंड नन. अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ऑल फोटोज़ है. एज आई एम क्लिकिंग ऑन सिलेक्टेड फोटोज़, इट विल ओपन माई फ़ोटो एल्बम. अभी इसमें भी कैसा है, एल्बम्स में अगर गए आप तो इसमें आपको दिखाई देगा बहुत सारा एल्बम्स है. सो नॉर्मली द प्रोसीजर आई फॉलो इज़ whenever I am clicking any photo from my camera or this cell phone, I just edit it via Lightroom or Snapseed depending on the photo.
अभी जैसे मैं एडिट करता हूँ, मान लो कि मैंने स्नैपसीड से एडिट किया, तो स्नैपसीड में जाके फ़ोटो बैठ गए ये। तो जैसे स्नैपसीड में फ़ोटो बैठा, अभी मुझे मालूम मैं इंस्टाग्राम पे मैं हर एक फ़ोटो स्नैपसीड से ही डालूंगा एडिट करके, तो ये स्नैपसीड नाम के फ़ोल्डर में चला गया। अभी मैंने जब सिलेक्टेड फ़ोटोज़ करके जब स्नैपसीड के फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा और डन करूँगा, तो इसमें वो सिलेक्टेड फ़ोटोज़ पे टिक आ गया। अभी अपना इंस्टाग्राम खोल के आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। मान लो कि अभी आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, मैं जस्ट इधर गया, अभी इंस्टाग्राम वुड लाइक टू एक्सेस योर फोटोज़, सो सेलेक्ट मोर फोटोज़, कीप करंट सिलेक्शन। सो आई जस्ट गो विद द कीप करंट सिलेक्शन जो हमने स्नैपसीड का सिलेक्ट किया था। अभी वो मुझे सिर्फ स्नैपसीड के फ़ोटोज़ दिखाएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फोटो, पूरे के पूरे फ़ोटोज़ आपको स्नैपसीड के ही दिखाई देगा। बाकी अब अगर आप इधर गए तो इधर एक भी फ़ोटो नहीं, सिर्फ 29 फोटोज़ दैट आर ऑलरेडी इन माई स्नैपसीड का फोल्डर। सो दिस वंस न्यू प्राइवेसी सेटिंग इन फोटोज़। और एक बात, और एक भूल गए हमें बताने के लिए, अंडर सेटिंग्स इन फ़ोन, सो हियर यू कैन सी इनकमिंग कॉल्स एंड देयर इज़ अ सेटिंग लाइक बैनर एंड फुल स्क्रीन। सो टिल iOS 13 कैसा था, जब भी आपको कोई कॉल आ रहा है, इट यूज टू ऑक्यूपाई द एंटायर स्क्रीन with two options. Suppose your phone is locked, it will just provide you an option to swipe to answer, and if you are working and if your phone is not locked or you are working on something, आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। बट आपका पूरा स्क्रीन बंद होता था उस टाइम पे। अभी ये टाइम पे ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया है, बैनर और फुल स्क्रीन। तो बैनर मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द कॉलर और द मोबाइल नंबर, आंसर एंड डिक्लाइन इफ़ द फोन इज़ अनलॉक्ड। तो ये एक नया ऑप्शन आप इधर से टॉगल कर सकते हो। आपको अगर वो नहीं चाहिए तो फुल स्क्रीन पे डाल दो, नहीं तो बैनर। आई वुड रादर प्रेफर बैनर। सो दीज आर एक्चुअली ऑल द चेंजेस इन iOS 14। सो दे और एक चेंज है एक्चुअली, वो भी एक्सेसिबिलिटी में नीचे एक ऑप्शन आता चेंजेस का, तो उसमें एक बैक टैप करके एक नया फीचर है। सो बैक टैप में कैसा होता है, अगर आप फ़ोन के पिछले साइड पे दो बार ऐसा टैप करोगे, यहाँ पे सीरी चालू होगा। सो दैट्स एडेड फीचर। ये फ़ोन को वो फैसिलिटी है नहीं। और उन्होंने सीरी भी, अभी सीरी का भी इधर होम स्क्रीन पे डाल दिया है सीरी को। सो जस्ट ट्राई इट। हे सीरी, यहाँ पे। सो सीरी विल एक्ट लाइक दिस नाउ। सीरी, व्हाट्स द टाइम? It's 0:05. सो इट वर्क्स लाइक दिस। पर ये भी आप मल्टीटास्किंग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मुझे कुछ करना है एंड मैं क्लिक करता हूँ तो सीरी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सो दीज आर द मेजर अपडेट्स इन iOS 14. नाउ आई विल गेट बैक टू द बग्स इन दैट वर रिजॉल्व्ड इन iOS 14.0.1. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बग्स दैट वर रिजॉल्व्ड इन iOS 14.0.1. सो पहला था नेटवर्क का. सो इट वॉज सम मॉडर्न अपडेट विच दिस सिस्टम गॉट. सो होपफुली दैट माइट हैव रिजॉल्व. मुझे तो अभी तक इशू आया नहीं. नेक्स्ट थिंग इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र. अभी टू बी ऑनेस्ट आई ओनली हैव सफारी छोड़ के मैं अभी तक तो कोई ब्राउज़र यूज़ किया नहीं है आईफोन पे. तो सो मुझे वो सेटिंग तो शायद आएगा नहीं यहाँ पे. इफ़ आई एम गोइंग इन सफारी, या देयर इज़ नो सेटिंग टू चेंज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र. बट जिनके पास दो ब्राउज़र है, एक सेटिंग रहेगा आपके फ़ोन में टू चेंज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र टू सपोज से गूगल क्रोम आपको चेंज करना है. तो अब जैसे ही, तो पहले कैसा होता था इन iOS 14, whenever you are changing the default browser to Google Chrome, suppose example if you are changing your default browser to Google Chrome, so change तो होता था, then your iPhone used to restart, so that's the procedure. अभी रिस्टार्ट होने के बाद it used to get back to Safari, the old browser, so that was the bug which has been fixed in 14.0.1. so it was the second thing. Third thing is the कैमरा प्रीव्यू. सो यहाँ पे अभी आपको प्रीव्यू दिखाई देगा. सो ये तो नहीं दिखता था. बहुत सारे मेनी यूज़र्स फेस्ड दिस इशू दैट दे वर नॉट एबल टू सी द प्रीव्यू एंड दिस फोटो विच यू आर क्लिकिंग हियर यू आर नॉट एबल टू सी. सो दैट वाज अनदर थिंग विच वाज फिक्स्ड. एंड टॉकिंग अबाउट द विजेट्स, तो न्यूज़ विजेट जो है उसमें मेनी पीपल वर नॉट एबल टू सी द फोटोज़ ऑन द राइट हैंड साइड इन द न्यूज़ विजेट विच नाउ प्रोबेबली हैव बीन फिक्स्ड. मैंने तो वैसे ही उड़ा दिया वो न्यूज़ विजेट बिकॉज आई डोंट एक्चुअली यूज़ दैट विजेट. सो दीज वेर द मेजर अपडेट एंड बग फिक्सेस विद रिगार्ड्स टू iOS 14 and 14.0.1.
Actually, I thought Apple would have released the 14.1 directly, but maybe they would release it soon or when they launch their next iPhone next month. So let's hope for the best, and that's all with iOS 14.0.1. So that's all with iOS 14. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे एक लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब, ठोक दो, उसके बाजू में घंटी बजा दो. बाय बाय.